I am here now. Yeah. Thank you for joining, ma'am. I'm happy too. Okay. So I'm starting. Yeah, So, thank you. Thank you so much. so Madhubani painting is a traditional folk art from Bihar, India, and Nepal. So they are on border, so they share a lot of cultural values, language, art, and their culture is quite similar. Okay. So एंशियंट रूट्स हैं यहाँ जो राम जी और सीता जी की मैरिज के टाइम राजा जनक ने जो अपने सिटी को डेकोरेट करने के लिए सबसे बोला था तो सबने मिथिला पेंटिंग बनाई थी। तो ऐसा बोला जाता है कि ये तब से चल रहा है, ट्रेडिशन में है। और इसका ओरिजिन राम जी और सीता जी के विवाह से हुआ था। और इसमें यूजुअली बहुत ऑस्पिशियस मोटिव्स ही बनाए जाते हैं, देवी देवता, बर्ड्स, फ्लोरा, फौना, एलिमेंट्स ऑफ डेली लाइफ, मतलब जैसे सोशल लाइफ, लाइक ladies are cooking, gossiping, and people are working or dancing, so like that. And every motive has its own meaning. So, like in Vastu also, we know na, that every direction, every color, every motive, and in astrology, every nakshatra has its own symbols and animals and birds. So we can connect those also. So generally, fish symbolizes fertility, peacocks symbolizes love, tree of life represents universal harmony. Universal harmony means the connection between nature and uh, people. Okay. So, what motive you are decorating, you should understand what energy it is carrying. Then evolution. So Madhubani paintings actually traditionally they painted just the walls, mud walls, and their courtyards. But in an earthquake in 1934, there was one British officer, William Archer. When he went for inspection and he saw those broken walls, then he just noticed the beautiful art, and then it reached to the global map. And now government is encouraging this art. Traditionally, it is practiced by women, but yes, nowadays men are also painting, and they are earning. They can be painted on paper, cloth, handbags, saris, kurtas, bed sheets, etc. So now the surface and paper. I will show you all this material. So for our drawings, we will use this 300 GSM watercolor paper. It can be hot pressed or cold pressed. And for the beginning, I will suggest handmade paper. You should not buy. I will show you the difference and all. Okay. Now, you can also work on canvas sheets and cotton fabric. All this I am going to show you how, but the best is this 300 GSM watercolor paper. For practice, we will use a drawing notebook and a ruled notebook. Why ruled notebook? Because we here in Madhubani, we have to draw a lot of lines and parallel lines. So ruled notebook में you can practice लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करके ना यू कैन बिल्ड मसल मेमोरी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इन टूडेज डेमो इटसेल्फ। एंड जितने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे लाइक द शीट्स एंड निब्स एंड कलर्स, उतना अच्छा आउटकम आता है। और in the beginning you can use fine liners, gel pens, micron pens, it's etc. Uniball pen, I will show you these pens also. But the best output comes with dip nibs. So dip nibs is like you have to dip the nib in the paint, and then you have to draw it on the sheet. तो काफी आई मीन ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आती है निब्स। तो बहुत फाइन निब्स भी आती हैं, थोड़ी सी फ्लैट निब्स भी आती हैं। फिर दीज आर एसेंशियल्स, स्केल, पेंसिल, इरेजर, ये स्केचिंग के लिए लगेगा। फिर एक्रेलिक पेंट्स यूज करेंगे, ये इट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग फिनिश। बिगनिंग में आप स्केच पेन यूज कर सकते हो या कलर्ड जेल पेन से भी काम कर सकते हो।
लेकिन एक्रेलिक पेंट्स, स्केच पेन क्या होता है ना, बाद में फेड हो जाती हैं पेंटिंग्स, बट फॉर बिगनिंग इट इज ओके, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज। फिर ब्रशेस हैं, तो दिस sizes and all I will show you. Round brushes are used for outlinings and delicate patterns. Flat brushes are used for coloring the backgrounds. Okay. Then some extra things like gel pens, tissue paper. कभी इंक यानी स्मज हो जाता है, या आपको निब्स को वाइप करना है, उसके लिए नैपकिन या टिश्यू पेपर आप हमेशा हैंडी रखो। और एक ट्रे लगेगा या पैलेट लगेगा जिसमें आप पेंट मिक्स कर सकते हो या डाइल्यूट कर सकते हो। वाइट जेल पेन का यूज पैटर्न्स बनाने के लिए भी हो सकता है, और इसको कहीं कभी कभी थोड़ा करेक्शन करना होता है, एक्स्ट्रा इंक लग गया, कलर लग गया, तो वहां भी यूज कर सकते हैं। एम आई टू फास्ट? आपको समझ में आ रहा है ना? जस्ट रेज गिव द थम्स अप। Yeah, the speed is okay. ओके, सो दीज आर डिफरेंट साइजेस। ये सबसे छोटा साइज है A5 साइज पेपर का, और ये उससे थोड़ा बड़ा A4, A3, A2, A1। तो इन दिस कोर्स में भी हम लोग A5 साइज की 3 पेंटिंग्स बनाएंगे, या फिर A4 साइज की 2 पेंटिंग्स बनाएंगे, सो दैट यू कैन डेकोरेट योर होम। ओके, तो ये जो लोग बैच फाइनली ज्वाइन करेंगे, वी विल डिस्कस फर्दर इन डिटेल। ट्रेडिशनल कलर्स, तो मधुबनी में ना ग्रेडियंट्स या शेडिंग या कोई भी शैडोज इस तरह के आर्ट फॉर्म नहीं है ये। इसमें सिर्फ फ्लैट कलर्स यूज होते हैं, काफी वाइब्रेंट और कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज होते हैं। सो यहाँ पे हम वैसे एक्रेलिक पेंट्स यूज करने वाले हैं, लेकिन ट्रेडिशनली जो ये कलर्स है ना, वो नेचुरल सब्सटेंसेस से डराइव किए जाते थे। तो जैसे इसमें प्राइमरीली ये कलर्स यूज होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। सो रेड इज, रेड कलर के फ्लावर्स से या सैंडलवुड से हम निकाल सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग। तो यहाँ पे ये रेड कलर जो है वो लाइफ, एनर्जी और पैशन को दिखाता है। ऑरेंज जो है वो क्रिएटिविटी को दिखाता है, इसको पलाश या मैरीगोल्ड फ्लावर्स से डराइव किया जाता है। येलो टर्मेरिक और पॉलन से डराइव किया जाता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स लाइट, वार्मथ एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करूँ ना, तो ये सारे प्लैनेट्स को ही कनेक्ट करता है। मे बी ग्रेजुअली इन द सेशन वी विल टॉक अबाउट इट। सो ग्रीन इज derived फ्रॉम leaves and it shows nature and fertility. ब्लू इंडिगो प्लांट्स होते हैं, ब्लू प्लांट्स होते हैं, अपराजिता फ्लावर्स एंड ऑल, तो उससे डिराइव कर सकते हैं, एंड शोज डिविनिटी एंड पीस। तो ब्लैक तो यूज होता ही है, आप बाकी कोई भी कलर यूज नहीं करो, सिर्फ ब्लैक से आउटलाइन करके एक मोनोक्रोम पेंटिंग बना सकते हो, एंड दीज पेंटिंग लुक वेरी गुड। तो ये जो लैम्प ब्लैक होता था ना, जैसे काजल बनाते हैं, उस तरह से वो बनाया जाता है। और बाकी ये वाइट कलर के लिए राइस पाउडर यूज किया जाता है, और ये वाइट बैकग्राउंड तो होता ही है, बट कहीं कहीं पैटर्न्स फिल करना है, एंड इट शोज द प्योरिटी। ये एक लिंक है जो आपको हेल्प करेगी कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने में। ये जो हम जब कलरिंग स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगी कि इसको यूज कैसे करना है। फिर भरनी, दिस इज अ टाइप ऑफ कलर एप्लीकेशन एक्चुअली। तो भरनी मीन्स ये जो है ना, इसकी मधुबनी की टर्मिनोलॉजी है। सो भरनी मीन्स फिलिंग द कलर। सो जैसे ये कलर को ब्रश से फिल किया हुआ है, यहाँ पे पर्पल, ये रेड, या फिर ये ब्लू, सो दिस इज कॉल्ड भरनी स्टाइल। देन कचनी, सो दिस इज जहाँ पे हम सिर्फ फाइन लाइन से पूरा काम करते हैं। तो इफ यू कैन सी दीज पेंटिंग्स, ओनली फाइन लाइंस और पैटर्न्स, सिर्फ निब से काम किया हुआ है यहाँ पे। देयर इज नो ब्रशेस यूज्ड एनीवेयर फॉर फिलिंग द स्पेसेस। सो दिस इज कॉल्ड कचनी। तो कचनी के भी टाइप्स होते हैं, अभी हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। देन थर्ड स्टाइल इज गोदना। तो इन आर कोर्स हम भरनी और कचनी ही करेंगे। गोदना पेंटिंग जो है, ये ट्रेडिशनली बॉडी टैटूज पे बनाए जाते थे, अभी तो सब कैनवस पे भी बनाते हैं। तो इसके मोटिव्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द भरनी एंड कचनी स्टाइल। तो यहाँ पे जैसे फेस फीचर्स बहुत क्लियरली बनाए जाते हैं, फिंगर्स एंड ऑल।
सो यहाँ पे वैसा नहीं है, दे मोटिव्स आर सिंपलर, क्योंकि टैटू पे बनाना होता था ना, तो द मोटिव्स वर सिंपलर। एंड यूजुअली ऐसे रोज में या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं ये। अच्छा, इसमें भी ना कास्ट भी आता है, जैसे कुछ पेंटिंग्स होते थे, जैसे ये फाइन लाइंस, ये ब्राह्मण्स प्रैक्टिस करते हैं, ये कायस्थ लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये इसको दलित लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो इसके बारे में अभी इतना कुछ नहीं है वहाँ, बिहार बिहार में शायद वो अभी भी फॉलो करते होंगे, बट बाकी ग्लोबली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, एवरीबडी इज ओपन टू ऑल काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स। देन तांत्रिक पेंटिंग्स, तो मधुबनी में ये ऐसे तांत्रिक पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, ये सिर्फ एक सैंपल है एंड इसमें भी बहुत वैरायटी है। तो तांत्रिक पेंटिंग्स बेसिकली 10 महाविद्या या जो देवी की शक्ति होती है, दुर्गा या काली, और उनके ये जो यंत्र होते हैं, यहाँ पे यंत्र मैंने कुछ बने हुए हैं यहाँ के, तो उनको देवी और उनके यंत्र साथ में बनाए जाते हैं। तो ये सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बट ये भी उसमें बनाया जाता है। फिर ये है फिफ्थ स्टाइल, दिस इज कॉल्ड कोबर। तो ये शादियों में बनाया जाता है, दे मैरिज सेरेमनीज में। इसमें सारे सिर्फ ऑस्पिशियस सिंबल्स यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन इज दिस बैम्बू, ये फैमिली लीनिएज को दिखाता है। देन लोटस, एंड देन ये जो पैर में फिशेस, डक्स, स्नेक्स को दिखाया जाता है, ये इसको सुग्गा बोलते हैं या पैरट। तो इनको ना ऐसे लटपटी या सुग्गा इसका टर्म है। इनकी अलग से भी पेंटिंग्स बनती हैं, मतलब यू कैन ओनली मेक सम 2 फिशेस एंड 2 पैरट्स एंड लाइक दैट। शिव पार्वती हैं, कलश हैं, और ये सन एंड मून है, ये 9 प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे सबका मीनिंग भी मैंने लिखा हुआ है। ये जो पीडीएफ है मैं शेयर करूंगी, जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो यू विल हैव ऑल दिस, तो आपको अभी कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो कलर एप्लीकेशन स्टाइल्स, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड भरनी, मतलब जहाँ सॉलिड कलर को हम ब्रश से फिल करते हैं, यहाँ पे शेडिंग और ग्रेडियंट नहीं होता है। कचनी इज लाइंड वर्क। अब ये लाइन पैटर्न्स का यूज करके जब हम स्पेस को फिल करते हैं, इसके मैं टाइप्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी आज ही। तो तिरछी कचनी, थार कचनी, दोहरी कचनी, झटकी, कुटनी, लहरिया, ये उनकी टर्मिनोलॉजी है। तिरछी कचनी इज स्लैंटेड लाइंस, जो फाइन लाइंस थोड़ी सी तिरछी खींची जाती हैं, तो उनको तिरछी कचनी। वर्टिकल लाइंस यानी थार कचनी। क्रॉस हैचिंग यानी कि जब फाइन लाइंस को ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनाया जाता है। झिटकी यानी कि ट्राइंगल्स एक्चुअली यहाँ मधुबनी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बट जब उसे थोड़ा टाइट पैटर्न में बनाया जाता है, नैरो ट्राइंगल्स, तो दे आर कॉल्ड झिटकी। देन डैश्ड को हम कुटनी बोलते हैं। कुटनी डैश या डॉट से भी हम मोटिव्स को फिल कर देते हैं। देन लहरिया यानी वेव पैटर्न, ये तो सबने सुना ही होगा। तो वेव पैटर्न जैसे रिवर्स या कहीं भी मूवमेंट दिखाना है तो उसको भरने के लिए यूज होता है। ओके, टिप्स फॉर सक्सेस। तो इसमें सिस्टम क्या है, यूजुअली हम पेंटिंग्स करते हैं ना, तो हमने स्केच ड्रॉ किया पेंसिल से, एंड देन वी फिल कलर एंड देन वी डू आउटलाइन, ऐसे स्कूल्स में हमने सीखा है। बट मधुबनी में वी हैव टू ड्रॉ द स्केच, देन डू द आउटलाइन, जो भी फिर कचनी वर्क करना है, देन फिल कलर्स। तो और हर बार वी हैव टू वेट कि अगर इंक थोड़ा भी गीला है या कलर, तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, नहीं तो इट हैपन्स मेनी टाइम्स वो स्मज हो जाता है। देन इंट्रिकेट वर्क, हाँ, तो आप जितना बारीक काम कर सकते हो, जितना ज्यादा हर स्पेस को। वैसे देखो, मैं आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम 13 years, तो हम लोग तो अभी तक यही सीखते रहे कि वाइट स्पेस होना चाहिए, इट मेक्स डिजाइन ब्यूटीफुल। बट व्हेन आई केम टू मधुबनी, आई लर्न कि यहाँ बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस वो रखना ही नहीं चाहते हैं, इट इज ट्रेडिशनली अवॉइडेड, एंड एवरी inch of your canvas will be filled with some design or pattern. Then keep it simple. तो बेसिक ये सिंपल मोटिव्स हम सारे सीखने वाले हैं यहाँ पे, फिश, पीकॉक, लोटस, एलिफेंट, बर्ड्स। एंड जो ज्वाइन करेंगे उनके साथ मैं और डिस्कस करूंगी, इफ यू वांट टू मेक अनदर, आई मीन ये बेसिक नहीं सीख के आपको कोई देवी देवता बनाने होंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर बॉर्डर्स, सो
हाँ, ये दिस इज अ मस्ट इन अ मधुबनी पेंटिंग। अभी भी जैसे आपने पहले देखा होगा, तो ये हर पेंटिंग में ना ये बॉर्डर्स या उसका जो एक बढ़िया डेकोरेटिव फ्रेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बनाया ही जाता है ट्रेडिशनली। तो जैसे ये जो बॉर्डर है, दिस इज फ्लोरल बॉर्डर। ऐसे ये दिस इज और फ्लोरल बॉर्डर्स, कहीं ज्योमेट्रिक बॉर्डर्स भी होते हैं, आई विल शो यू। तो ये बॉर्डर्स भी हम सीखने वाले हैं, कम से कम 5-6 टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर parallel lines, this is the identity of madhubani painting basically। जब भी हम मोटिव्स बनाते हैं ना, उसमें पैरेलल लाइंस बनाना जरूरी है। एंड इट रिप्रेजेंट कॉस्मिक बैलेंस ऑफ शिव एंड शक्ति। ये बहुत पॉपुलरली, मतलब इनको शिव और शक्ति लाइंस ही बोलते हैं। और हमेशा बॉर्डर बनाने का एक सिग्निफिकेंस ये भी होता है, या डबल लाइन करने का, कि दे वांट टू लॉक द पॉजिटिविटी इनसाइड। जो भी हमने ऑस्पिशियस सिंबल्स बनाए हैं, मोटिव्स बनाए हैं, उसको वी हैव टू लॉक द एनर्जी। एंड जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है ये जो शिव शक्ति लाइंस है ना, दिस इज ऑल्सो द बैलेंस ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो व्हेन वी प्रैक्टिस मधुबनी आर्ट ना, आपको बहुत कॉन्शियस भी रहना होता है, एंड यू आर वेरी रिलैक्स्ड ऑल्सो। तो इट्स वेरी गुड बैलेंस ऑफ माइंड। तो ये मैंने जो पर्सनली मैं आई एम प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम पास्ट 3 years। तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड with practicing Madhubani art is that this is the form of active meditation। इसको मैं आगे भी और डिटेल में बताऊंगी ब्रेन वेव्स के साथ में, why it is called active meditation। एंड क्योंकि you feel relaxed while being productive, you are creating something and still you feel relaxed and feel like it's healing, it is meditation। So it improves fine motor skills, hand-eye coordination, cognitive cognitive ability and it boosts memory। तो इसमें भी मैं आगे आपको डिस्कस करने वाली हूँ ब्रेन वेव्स के साथ में। तो फाइन मोटर स्किल्स तो जो हम हैंड्स या फिंगर्स से कोई भी आर्ट या कोई काम प्रैक्टिस करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको मधुबनी ही करना है उसके लिए, बट इट इज वन ऑफ द स्किल्स दैट यू कैन लर्न टू improve your fine motor skills। then hand eye coordination, कॉग्निटिव एबिलिटी, क्योंकि आपका माइंड जब रिलैक्स स्टेट में होता है ना, तो उसकी आप ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके, आप ना अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप लिखते जाना, और लास्ट में मैं 5-10 मिनट्स के लिए आई टेक द क्वेश्चंस। इट गिव्स द फीलिंग ऑफ क्रिएशन, जॉय, फुलफिलमेंट एंड सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट। सो व्हेन एवरी पेंटिंग यू कंप्लीट ना, मे बी बिगनिंग में वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी, और वो आप बाद में जब 2-3 साल बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज यू विल इम्प्रूव ना ग्रेजुअली। तो बट लेकिन जब वो आप उसको फ्रेम करके लगाते हो ना, यू फील लाइक बस उसको देखते रहो। It develops patience and teaches that beautiful things take time. In this era of instant gratification, when we get everything on one click, within 5 minutes, we get all the things delivered. We don't know how to wait for things, ना जैसे आपको लाइक बुकिंग अ कैब, अ मूवी टिकट, आप बस एक एक क्लिक किया और सब काम हो जाता है। तो nowadays we forgot what मतलब if you have 9 women and they can't deliver a baby in 1 month ना, the baby takes 9 months। तो चीजें टाइम लेती हैं लाइफ में, so we need to learn patience। Then it reduces overthinking and helps in managing anxiety and sleep issues। So obviously when you are focused on a art form like this, तो बहुत सारे थॉट्स जो हमेशा आपके माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हैं, आप वहां से डाइवर्ट हो जाते हो, एंड एंजाइटी कम हो जाती है। इट calms and relaxes your brain and it helps in the sleep issues also। And for me it is the best thing, it helps me reducing in the screen time, because being a designer from past 10-12-13 years मुझे स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ती थी, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक रहने लगा था। तो नाउ ये इसमें भी बहुत बारीक काम होता है, बट इट इज़ नॉट स्क्रीन, तो इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट in my managing my this headaches and all।
So it helps in rewiring your brain, because when you keep overthinking always, na, it reduces the size of our brain. And practicing any slow art like Madhubani, with repetitive lines and patterns, calms your nerves and builds deep focus. A calmer mind physically changes and grows your brain's neural networks through neuroplasticity, strengthening pathways for emotional control while shrinking the stress center, eventually leading to smarter choices. So आपको पता होगा, दिस जनरली ये बोला जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत सैड हो या बहुत एंग्री हो, मतलब in any extreme emotional state, then you should not take any decision. You always tend to over promise, और ऐसे हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा हम बढ़ के या तो प्रॉमिस कर देते हैं या गुस्से में कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो नहीं होना चाहिए. सो ऑलवेज टेक डिसीजंस व्हेन योर माइंड इज काम. तो ये बहुत हेल्प करता है, मतलब क्योंकि आप जब लंबे टाइम तक किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके ब्रेन में वायरिंग ही वैसे हो जाती है. सर्किट्स, आपके जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के, आपके सर्किट्स ही वैसे डेवलप हो जाते हैं. देन आपको उस स्टेट में रहना नॉर्मली भी इजी हो जाता है. Okay, so now these are the 5 types of brain waves. ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैंने इसको थोड़ा पढ़ा है. एंड आई लाइक टू रीड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. बट तो ये जो वेव्स है ना, दीज आर इलेक्ट्रिक रिदम्स ऑफ योर ब्रेन. तो कौन सी स्टेट में आपके ब्रेन के अंदर कौन सी तरह के वेव्स काम कर रहे होते हैं, ये उसको दिखाता है. सो व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, it's the delta waves. When you are in subconscious state or meditation, then it is theta waves. Alpha waves यानी कि जब you are into a balanced state, ये मैं आगे भी बता दूंगी. Beta waves when you are your brain is slightly more active, and this is when your brain is very active. So उस ये मैंने यहाँ पे फिर से दिया हुआ है. तो गामा वेव्स यानी कि यहाँ पे जो रेड वाला जोन है, यहाँ पे जो आप एक्टिविटीज करते हो ना, ये लाइक इट्स गुड फॉर स्टडी एंड ऑल. मतलब ब्रेन काफी एक्टिव है, मेमोरी, आप मतलब बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, और यू आर डूइंग अ मल्टीटास्किंग, लॉट ऑफ थिंग्स यू आर मैनेजिंग. तो उस समय हमारे ब्रेन में मतलब एक हाइपर जोन में चला जाता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज करने लगती है बॉडी. तो ये जो है ये गामा वेव्स हैं. बीटा अगेन अलर्टनेस है, कंसंट्रेशन है, थिंकिंग है. नाउ दिस स्टेट अल्फा, this is meditation, creativity, and relaxation. So alpha waves are medium frequency electrical brain rhythms. They bridge active thinking and deep relaxation. तो जब से मैंने अभी पहले एक स्लाइड में बात की थी ना कि मधुबनी पेंटिंग इज फॉर्म ऑफ एक्टिव मेडिटेशन. यू फील रिलैक्स्ड वाइल बीइंग प्रोडक्टिव. सो ये वो स्टेट में लाने में हमें हेल्प करता है, अल्फा वेव जनरेट करने में. एंड देन दिस इज थीटा एंड डीप स्लीप. इनफैक्ट यू विल सी कि कभी कभी आप थीटा में भी पहुंच जाते हो, बट स्टिल आई फील कि ये दिस इज अबाउट, आप कॉन्शियस भी रहते हो ना, क्योंकि आपको पेंटिंग करना है तो यू नीड टू सी कि आपने कोई गलत कलर में तो ब्रश टिप नहीं किया. एंड देन आपको बहुत सारा कलर सिलेक्शन, पैटर्न सिलेक्शन, मतलब यू आर कॉन्शियस वाइल पेंटिंग. बट स्टिल क्योंकि यहाँ रिपीटेटिव पैटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, once the outline is done, you just have to do that kachni work से especially you feel very relaxed. So जो fine lines का काम होता है इसमें. फिर what we will learn in this course. So borders बताऊंगी मैं आपको, geometric, floral, fish, lotus, etc. कम से कम 5-6 टाइप की बॉर्डर्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी, और थोड़े बहुत बाकी भी मैं आपको भेज दूंगी, तो आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो. फिर बैकग्राउंड पैटर्न्स कैसे फिल करते हैं इन एनी काइंड ऑफ पेंटिंग. जैसे हमने मेन मोटिव बना लिया एक, लेकिन बैकग्राउंड पूरा फिल होना चाहिए. तो देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ पैटर्न्स. तो फ्लोरल पैटर्न्स, लीव्स, वाटर बॉडीज, मतलब उसको भी डैश, कुटनी वगैरह से भी भर सकते हैं. तो वो पैटर्न्स हम कुछ टाइप के देखेंगे. फिर ये मेन मोटिव्स देखेंगे, पीकॉक, एलिफेंट, टर्टल, एटसेट्रा. फिर
माई एम इज कि आप कोर्स के एंड तक कम से कम 3 A5 साइज की या फिर 2 A4 साइज की पेंटिंग जरूर बना लो, और अच्छी फिनिशिंग के साथ बना लो। तो मतलब आपको पहले ड्राइंग बुक में जितनी प्रैक्टिस करना हो वो भी कर लो, एंड देन क्योंकि आपके हाथ में कुछ होगा। ओके, सो दिस विल बी द एक्टिविटी। ये मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या करना है, और मटेरियल दिखा देती हूँ अभी आपको। ओके, सो प्रेफरेबली ना आप ना डेस्कटॉप से ही ज्वाइन करना इसको, बिकॉज बहुत इंट्रिकेट काम है, हो सकता है मोबाइल में आपको प्रॉपरली विजिबल ना हो। सो दिस इज माय सजेशन, बट इट्स योर कन्वीनियंस, आप जिससे चाहो कर सकते हो। ओके, सो हैप्पी हीलिंग। तो ये मैं आपको करा देती हूँ, दिस एंड मटेरियल। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग। ओके, so can you see my desk now? Thumbs up, Yes. please. हाँ दिख रहा है, या हाँ, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, सो मैं ना आपको मटेरियल दिखा देती हूँ पहले, 1 मिनट। So this is the brand that I will suggest you to buy. ये कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बट इसके साइजेस हैं ये A3, A4 एंड A5। सो ये बहुत स्मॉल साइज है, सेट ऑफ 3 में इसकी पेंटिंग हम बना सकते हैं। और ये है इसकी फिनिशिंग इस तरह की आती है, जैसे ये पेंटिंग बनी हुई है, या फिर A5 साइज में दिखा देती हूँ आपको। ये इसका थिकनेस है इतना, ये इसका हार्डनेस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरह के पेंटिंग्स ये इस पे बना सकते हो। फिर ये मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगी अगर आप चाहोगे तो, और यू इफ यू दैट वुड वांट बी यू कैन बाय नाइस, फ्रॉम। नहीं दिख रहा दैट है? वुड बी नाइस। दिख रहा है, आई सेड, हाँ यू सेड लिंक शेयर करेंगे। हाँ, तो मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, और इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम योर लोकल शॉप वो भी आप कर सकते हो। बट ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने दूसरे ब्रांड्स भी ट्राई किए हैं, वो भी बताती हूँ आपको। तो वो क्यों नहीं जमेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। वो उतना काम नहीं किया, मुझे काफी चैलेंजेस आए उसको यूज करने में। तो हम्म, ये जो ब्रांड का है, ये हैंडमेड पेपर, इसको देखो आप, बहुत रफ है ये पेपर, आपको दिखाई दे रहा है क्या? काफी या रफ है। या हम्म तो इसमें क्या होता है कि जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो, और सपोज एक बार में सही ड्रॉ नहीं किया, तो जब आप इरेज करते हो ना, तो ये पेपर ही निकलने लगता है। तो आपका ड्राइंग ही बहुत मुश्किल से बनता है, अंदर उसके बाद जब आप काम करते हो तो उस पे ये स्मूथ नहीं है, तो निब चलाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये पेपर आप बिल्कुल मत लेना। हैंडमेड पेपर्स में भी अगर कोई स्मूथ पेपर मुझे मिलेगा तो वो भी मैं आगे भेज दूंगी, यहाँ पुणे में ही बनता है वो पेपर, उसकी भी लिंक है मेरे पास, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ये आप जब अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद भी समझ में आएगा धीरे धीरे कि फॉर यू विच मटेरियल वर्क्स, क्योंकि वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये भी होता है, कैनवस होता है, ये ऐसे बाइंडेड भी मिल जाते हैं, लूज में मिल जाते हैं, रोल्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत बड़े साइज की पेंटिंग के लिए, जैसे कपड़े के थान होते हैं ना बड़े बड़े, तो उस तरह से ये रोल्स मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, और इसको एक्चुअली इफ यू हैव टू शिप इट टू सम अदर प्लेस तो उसके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये जो पेपर होते हैं वो फोल्ड नहीं कर सकते, इनको आप ऐसे रोल करके आराम से शिफ्ट कर सकते हो, जहां आपको सपोज किसी और सिटी या कंट्री में आपको उसको डिलीवर करवाना है अपनी पेंटिंग। तो इसके बाद आता है, या फॉर आवर प्रैक्टिस हम ऐसे नॉर्मल नोटबुक्स यूज करेंगे। तो इसमें आप पहले सारे बॉर्डर्स मोटिव्स वगैरह सब बना के देख सकते हो, फिर बाद में वो those शीट। are the drawing notebooks, right? हाँ, या नॉर्मल नॉर्मल नोटबुक्स, ये तो आप अपने लोकल कोई भी बगल में शॉप से ले सकते हो। But तो वो ये, ड्राइंग वाले, ड्राइंग हाँ हाँ, वाले, राइट? या ड्राइंग ड्राइंग बुक्स, ये कुछ भी हाँ स्पेशल पेपर नहीं है, नॉर्मल हाँ ड्राइंग बुक्स हैं एकदम, मतलब जो नॉर्मल इसके पेपर इन। पतले हो सकते हैं ना, 60 हाँ हाँ, जीएसएम बिल्कुल वाले भी बिल्कुल चलेंगे? पतला है ये, एकदम पतला है। ठीक है। तो इनफैक्ट ये देखो, मैंने इस पे पेन से ही बनाया है, ये स्केच पेन भी नहीं है नॉर्मल, ये जो है ना,
ये मैंने शुरू में प्रैक्टिस के लिए लग्जर के कलरफुल पेन से बनाया था ये। तो ये इसमें ना इवन पीछे दिखने लगता है, लेकिन बिगनिंग में प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आप कर सकते हो। पहले नोटबुक पे प्रैक्टिस करो एंड देन इस पे करो। तो ये भी लग्जर पेन से ही बनाया हुआ है। तो पहले आप फाइन लाइनर्स, या जैसे मैं पेन भी दिखा देती हूँ, तो ये लग्जर है। और भी ब्रांड्स आते हैं इसमें, ब्रूस्टो का भी आता है, देन रोटरिंग भी आता है, फिर ये माइक्रॉन्स है। ये ये भी अलग अलग साइजेस में आते हैं। ये मेरे पास अभी 1, 3 और 5 है। ये सबसे फाइन होता है 1। तो ये मैं थोड़ा दिखा देती हूँ चला के। So you need both of them to start. सॉरी मैम। दोनों टाइप के पेन्स लगेंगे ना जब नहीं शुरू नहीं, मैं करेंगे आपको वो भी तो? बता दूंगी। वो नहीं, ये पेन्स अच्छा, अभी आप मत लो। अगर आपके पास ऑलरेडी है आप यूज कर सकते हो। ओके अगर ऑलरेडी ओके ले रखे हैं तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज डोंट बाय दीज। ओके ओके। ठीक है ना। प्रैक्टिस तो आप, मैं बताऊं, नॉर्मल बॉल पेन से भी कर सकते हो, या ये ऐसे यूनिबॉल के पेन से कर सकते हो, जेल पेन से भी कर सकते हो। जो कलर्ड जेल पेन का सेट आता है ना, 10-12 पेन का, वो भी ले सकते हो। ओके इसमें नोटबुक ओके में प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको इससे ही करना है। तो ये यूनिबॉल के पेन है। इसमें भी ये 2 साइजेस आते हैं, ये 0.5 और 0.7। 0.7 विल बी स्लाइटली थिकर। ओके। ये थोड़ा सा ओके। थिक है, ये थोड़ा सा थिन है इससे। तो So ये तो 0.7 ये to मैं सब start भेजने with. वाली हूँ, डोंट वरी। Okay, ये सिर्फ, और ये okay, मिलके मैंने वहां मेंशन भी किया हुआ है, तो मैं वो पीडीएफ भी भेजूंगी, और ये मैं और डिटेल में इसका लिंक्स वगैरह आपको जो भी चाहिए होगा वो भी भेज दूंगी। ठीक okay. है। और मुझे लगता है ये पेन हो गए, या जो नॉर्मल फाइन लाइनर्स हैं, उनसे आप नोटबुक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो पहले, इन द बिगनिंग। लेकिन अगर आप चाहोगे तो पेंटिंग हमको अगर बनानी है, तो वो इसमें ये जो 300 जीएसएम का पेपर मैंने बताया था ना, उसमें ही बनाना। फिर ऐसे, जैसे हम पेपर पे जब काम करेंगे ना, तो प्रेफरेबली ये निब्स यूज करना। वैसे माइक्रोन्स भी चल जाते हैं उस पे। ये जो माइक्रोन्स है ना, वो भी उस पे चलते हैं, ऐसा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा काम हाँ करता है। बट हाँ। जैसे जितने जल्दी आप निब पे शिफ्ट हो जाओगे ना, मतलब निब पे आपने एक बार काम किया ना, तो आपका मन ही नहीं होगा पेन उठाने का। ये इतना मजा सेट हो आता है इससे जाता काम करने में। हालांकि थोड़ा बिगनिंग में आपको लग सकता है, क्योंकि इसको ना डिप कर करके बनाना पड़ता है। मैं थोड़ा सा आपको वो भी बता देती हूँ, 1 मिनट। हाय अंशुल। हाय अंजलि, यू जॉइन जस्ट ना। हाँ, ओ, हो गया क्या? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग बन जाएगा आपके। अभी मैंने मटेरियल जस्ट दिखाना ही शुरू किया था। तो ये ओके ना ओके। मैं इंक यूज करती हूँ, या इसकी जगह आप एक्रेलिक पेंट को भी डाइल्यूट करके यूज कर सकते हो। मैं इंक और जो भी लिंक्स आपको चाहिए होंगे मैं सब भेजूंगी, और आराम से भी दिखाऊंगी। तो ये इंक को मैं इसमें निकाल के रखती हूँ। दिस इज नॉट इंक का बॉटल, दिस इज पेंट का बॉटल, बट मैंने उसमें डाल के रखा हुआ है। तो ये जो है, निब को ऐसे डिप कर करके यूज करना पड़ता है, विच में लुक लिटिल बोरिंग इन द बिगनिंग। बट जब आप वो सॉरी 300 जीएसएम पेपर पे काम करोगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा थिक है, ये एकदम फाइन है। 300 व्हाट पेपर? 300 जीएसएम मैं ना सारी लिंक्स शेयर करूंगी, और एक पीडीएफ भी है, उसमें सारा डिटेल में दिया हुआ है मैम। पेपर क्वालिटी सारा सब मैं अभी भेजती हूँ आपको। सब कुछ है उसमें, मैं आपको अलग से भी बता दूंगी, डोंट वरी। ओके। 300 जीएसएम या एटलीस्ट अबाउट 200 जीएसएम पेपर जो होता है ना, वो थोड़ा थिक पेपर होता है। तो उस हम्म। पे जब पेंटिंग्स बनाते हो तो बहुत कलर अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे आपने जैसे एक लेयर कलर का किया, लेकिन अब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उस पे आपने सेकेंड लेयर भी किया, तो वो चल जाता है। जबकि शायद मेरा इसके, ऑर्डर है प्रीमियम पेपर पैड। हाँ, शायद है। अच्छा आप लेके आ गए कोई अच्छी बात है। हाँ, तो उस पे बना सकते हो आप। तो ये ऐसे फाइन लाइंस, ये बहुत सबसे फाइन निब है ये। तो ये ऐसा काम आपको करना रहेगा उस पे। ये ये बेस्ट पार्ट रहता है, जब आप एक बार आपका ड्रॉ हो जाता है ना,
फिगर। एक टिश्यू पेपर देना बेटा। हाँ ना, इधर ही। ओके। सो ये हो गया निब्स। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं बहुत अभी भी यूज करती हूँ इसको। जब आप यूज करते हो ना, इसको ऐसे वाइप कर लेना है नैपकिन से या टिश्यू पेपर से। हर बार वॉश करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वाइप करना होता है, क्योंकि बीच बीच में ना थोड़ा यहाँ पे वो थिक पेंट जमने लगता है, तो वाइप करना है। इसके अलावा ये वाला भी निब का सेट है, इसमें भी अलग अलग ये 5 थिकनेस है। अच्छा, ये वाले जो सेट है ना, ये रिमूवेबल है निब। तो जैसे ये निकाल के आप इसमें दूसरे थिकनेस का निब लगा सकते हो, तो इसके साथ एक्स्ट्रा निब्स आती हैं, बट ये होल्डर 2 ही आते हैं, जबकि इसमें ये फिक्स रहता है। निब होल्डर में फिक्स करके फिर आता है। तो और 5 अलग अलग थिकनेस आती हैं, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ता। सो ये हो गया निब्स। बाकी पेंसिल्स हैं, ये पेन पेंसिल्स हैं या नॉर्मल पेंसिल आप यूज कर सकते हो। ये थोड़ा हेजल फ्री है, इसमें शार्प नहीं करना पड़ेगा और एक सी थिकनेस आएगी। तो ये पेंसिल्स है, ये आप ले लेना। तो खैर होंगी। फिर ये वाइट जेल पेन जो मैंने शुरू में बताया था, एक वाइट जेल पेन जरूर रखना, क्योंकि ये पैटर्न्स भरने के भी काम में आता है। थोड़ा बहुत कहीं ज्यादा कुछ हो गया तो ऐसा इरेज करने के भी काम में आ जाता है। थोड़ा बहुत स्मज हो गया इंक तो वाइट जेल पेन। फिर ब्रशेस हो गए। तो ये हम जब कलर फिल करना स्टार्ट करेंगे तो मैं एक बार फिर से बताऊंगी। जितनी बार भी आपको पूछना है ना, आप पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, पर्सनल चैट पे भी पूछ सकते हो। तो इसमें से जैसे ये जो 2 हैं, ये फ्लैट ब्रशेस हैं। ये बैकग्राउंड में जब आपको कलर फिल करना होता है उसके लिए अच्छे होते हैं। ये थोड़ा छोटा स्पेस हो गया, ये बड़ा हो गया, इसमें और भी साइजेस आते हैं। और बाकी ये सारे ऑलमोस्ट, ये हटा देते हो, ये सारे राउंड ब्रशेस हैं। तो जैसे जो सबसे थिन है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है लाइंस, क्योंकि मधुबनी में बहुत फाइन काम होता है, या बहुत बारीक बारीक जगह पे कलर भरना होता है। तो ऐसा ये 00 या 0 नंबर का ब्रश आप ले सकते हो, ये लेना ही पड़ेगा इनफेक्ट, इसके बिना नहीं चलेगा। निब्स के बिना एक बार चल जाएगा शायद, क्योंकि अगर बिगनिंग में आप एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे तो आप माइक्रोन से या यूनिबॉल से प्रैक्टिस करते रहना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक स्केल जरूर लगेगा, क्योंकि मधुबनी में बॉर्डर बनाने होते हैं, तो एक अ, छोटे और बड़े साइजेस में आप स्केल्स ले लेना। ये अगेन ये राउंड ब्रश है, ये थोड़े बड़े साइजेस के हैं, तो अगर जब बड़े साइज के पेंटिंग बनाना हो तब ये आउटलाइंस के काम में आते हैं। फिर ये ले लेना आप, ये तो लगेगा एक पैलेट मिक्स करने के लिए कलर्स को, या डाइल्यूट करने के लिए कलर्स को, क्योंकि एज इट इज तो यूज नहीं कर सकते हैं। फिर ये कुछ कलर्स हैं, तो यूजुअली कैमल या फेविक्रिल, ये ये 2 ब्रांड्स यूजुअली अच्छे रहते हैं, बाकी आते भी हो तो मुझे पता नहीं है। दिख रहा है क्या ये? अच्छा, ये इधर है। अरे ये Yeah, कौन yeah. से कलर, एक्रेलिक है क्या? एक्रेलिक एक्रेलिक कलर्स है ये। तो इनकी फिनिश बहुत अच्छी आती है। पोस्टर कलर या वाटर कलर से भी आप बना सकते हो, लेकिन वो ये कि मतलब वो उतना ओपेक नहीं रहता, ये बहुत अच्छा फ्लैट और बोल्ड लुक आता है एक्रिलिक कलर से, और बहुत जल्दी हम्म। ड्राई भी हो जाते हैं ये। तो इट्स और बहुत सालों बाद भी आपकी पेंटिंग वैसे के वैसे दिखती है। जैसे स्केच पेन से बनाई हुई पेंटिंग होती है ना, तो कुछ सालों बाद वो फेड हो जाते हैं कलर्स, इनफैक्ट चेंज भी हो जाते हैं कलर्स। आपने कोई कलर भरा था और वो बाद में कुछ और ही हो जाता है। तो ये हो गया मटेरियल ऑलमोस्ट पूरा। अब मैं बता देती हूँ आपको प्रैक्टिस क्या करना है। इसमें जो फाइन लाइंस रहती है वो भी ब्रश यूज करके फाइन लाइंस बनाते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ब्रश यूज करके भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑल्सो, मतलब जो सरफेस आप यूज कर रहे हो ना। हाँ। तो जैसे आप बड़े साइज का कैनवस यूज कर रहे हो तो ब्रश यूज हाँ। करना ज्यादा कन्वीनियंट है, पर उस पे भी निब यूज हो जाती है। और ओके। पेपर के ऊपर भी ब्रश भी यूज हो जाता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो आप अपने प्रैक्टिस से ना, अपने कन्वीनियंस से देख सकते हो कि आपको क्या जमता है। ओके। ठीक है। उसके बाद एकदम बिगिनिंग में, जस्ट टू बिगिन विद, अपना थोड़ा जो हाथ सेट करना जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए आप बस एक सिंपल रूल बुक ले लो।
और कोई भी दो बॉल पेन, जेल पेन, यूनिबॉल, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। कोई भी कलर का भी ले सकते हो। इट इज ओनली फॉर बिल्डिंग योर मसल मेमोरी। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि लाइन ऑलरेडी, क्योंकि रूल्ड बुक है ना, तो लाइन के ऊपर ही लाइन खींचने की प्रैक्टिस करनी है। सो इससे क्या है ना, फोकस इंप्रूव होगा आपका। Is it good to do it with the nibs or we can do it with pen? मैम नॉर्मल पेन। Normal pen. Okay. हाँ नॉर्मल Okay. पेन। निब्स हम Okay. तभी यूज करेंगे जब हम शीट्स पे प्रैक्टिस करेंगे फाइनली। Okay. Okay. So अभी कुछ नोटबुक और पेन चाहिए। बस रूल्ड नोट, हाँ रूल्ड बुक, एक ड्राइंग बुक एंड पेन, दैट्स इट। Okay. और पेन आप Okay. अपने चॉइस के ले सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइन लाइनर्स या पड़े हो, लग्जर या रोटरिंग, Yeah. है ना, तो वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये यूनिबॉल के पेन ले सकते हो। Yeah. तो बस ये ऐसे लाइंस के ऊपर लाइंस बनाने की आप प्रैक्टिस करो। इसमें भी बहुत फोकस करना पड़ता है, एक मसल मेमोरी बिल्डअप करनी पड़ती है। बट इसमें कुछ है। ओके, सो दिस, जितने धीरे धीरे करके कोशिश करो कि लंबा स्ट्रोक एक बार में आए, जिससे कि जॉइंट्स ना दिखे। या अगर हाथ थोड़ा मूव भी करना पड़ता है तो आप टिप को मूव ना करो। तो ये देखो एकदम स्मूथ आ गया। अब इसी लाइन के ना पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये शिव शक्ति लाइंस होती है ना, तो पैरेलल लाइंस खींचना आपको सीखना पड़ेगा, जितना इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। That's तो the hard part. हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, बट आपको ये ना फोकस करता है, मतलब आपको फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी यहीं से, वो जो मैंने बोला था, इंप्रूव होता है। तो दिस इज टफ, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। जैसे आपने ये वन फुल पेज भी किया ना, तो आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। उसके बाद ना, जैसे ये आपने कर लिया, तो आपको फिर कचनी की प्रैक्टिस करनी है। अब कचनी मैंने आपको बताया था ना, वर्टिकल लाइंस, ये ये Wow. थार कचनी। तो बस ये आप खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो बैठ के। ये हो गया। That's very nice. ठीक है, तो ये ऐसे पूरा भर लेना। फिर मैं इधर ही बता दे रही हूँ। फिर ऐसे तिरछी कचनी, तो स्लैंटिंग लाइंस भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। तो ये अभी आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप एक फिगर बना के, जब उसके बॉर्डर्स वगैरह में ड्रॉ करोगे ना, लहंगा बनाना है, दुपट्टा बनाना है, या पूरे पेंटिंग का एक बॉर्डर बनाना है, तो उसमें ये बहुत सुंदर दिखता है। और इसको और फाइन भी आप कर सकते हो, जितना फाइन कर सकते हो कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बहुत बहुत फाइन करना है, बट इवन एकदम जो बिल्कुल फेदर जैसा दिखता है, वो इतना फाइन कर सकते हो। मैं अभी एक लेटेस्ट जो मैंने पेंटिंग डाली थी, मैं वो दिखा देती हूँ। उसमें मैंने बहुत फाइन काम किया हुआ है। जैसे ये है इधर, या ये लोटस में है। इसको माउंट कैसे करते हो आप फ्रेम वगैरह करने में? सॉरी, कम अगेन मैम। How do you frame these beautiful paintings? फ्रेम्स भी मैम अमेजोन पे मिल जाती हैं। इसके लिए? There's lot of variety in Amazon। Okay. Okay. Good हाँ, to know. तो आजकल ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ग्लास ही आता हो, देयर फाइबर एंड अदर मटेरियल्स, तो ऐसा Yes. बहुत लाइट वेट भी रहती हैं। तो आराम से आप यूज कर सकते हो, मतलब ऐसा ग्लास टूट जाएगा या ऐसा कुछ नहीं, बहुत ये लाइट। वैसे भी पता है, एक और चीज इस पेंटिंग में, इसमें ना पेंट बहुत कम लगता है। इट्स नॉट थिक लेयर ऑफ पेंट, और ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत कम पेंट में। मतलब मुझे इतना सा पेंट निकालना होता है और ये पूरा ट्री बन जाता है उसमें। बन जाता है। हाँ, पेंट बहुत ही कम लगता है, मतलब इट्स वेरी काइंड ऑफ अफोर्डेबल। हम्म। हाँ, लेकिन टाइम बहुत देना पड़ता है, मेहनत है, बैठना पड़ता है काफी देर। तो ये हो गई कचनी, सॉरी थार कचनी, तिरछी कचनी। देन ये हो गई दोहरी कचनी। ऐसे आप
क्रॉस हैचिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो पहले एक तरफ स्लैंटेड लाइंस, फिर दूसरे तरफ स्लैंटेड लाइंस। तो ये दोहरी कचनी हो गई। इसको सिर्फ इसके अंदर करना ऐसा नहीं है, मतलब जैसे आपका इतना बड़ा बॉक्स है, या कोई आप दुपट्टा भर रहे हो, या कोई भी और जगह पे कर रहे हो, तो ये इस तरह से पूरा उसको फिल कर दोगे एक तरफ। एंड देन ऑपोजिट साइड। अच्छा, इसमें जो हैंड मूवमेंट भी है ना, जैसे आई एम लेफ्टी, तो मुझे राइट टू लेफ्ट ज्यादा सूट करता है, राइट टू लेफ्ट ऐसे। ये भी यू हैव टू फिगर आउट। ये नहीं कि मुझे कॉपी कर रहे हो ना जैसे, तो आप भी राइट टू लेफ्ट करने लगो। इफ यू आर कंफर्टेबल लेफ्ट टू राइट, तो आप ऐसे करना प्रैक्टिस। इट्स अप टू यू, यू हैव टू फिगर आउट। क्योंकि मैंने ऐसे देखा था, जो एक्टर्स होते हैं ना, जो अमिताभ बच्चन को कॉपी करते थे, तो वो लेफ्ट हैंड से एक्टिंग करके बताते थे। तो दे क्योंकि अमिताभ बच्चन इज लेफ्ट हैंडेड, तो वो जब उसको कॉपी करते थे तो दे यूज टू लाइक यूज देयर ओन लेफ्ट हैंड्स, जबकि वो खुद राइट हैंडेड होते थे। सो डोंट कॉपी माय डायरेक्शन ऑफ वर्किंग। ओके, सो दिस इज क्रॉस हैचिंग या फिर दोहरी कचनी। दिस इज थार कचनी, दिस इज तिरछी कचनी। एंड देन व्हाट नेक्स्ट, लेट मी चेक वंस। हाँ, ट्रायंगल्स की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग थोड़े। जितने इक्वल डिस्टेंस पे आ सके कोशिश करना कि उतना इक्वल बने हो। तो ये नॉर्मल ट्रायंगल हो गया, इसको भी बॉर्डर के अंदर ही बनाना है वैसे आपको। तो ये लाइंस की प्रैक्टिस तो करना ही करना है, पहले लाइंस एंड देन ट्रायंगल्स। और उसमें भी क्या है, ये कचनी, कचनी कैन बी अगेन यहाँ एक तरफ हम यहाँ कलर भरते हैं। ये बॉर्डर्स में ना आपको और डिटेल में आराम से बताऊंगी, ये मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिस आप जैसे कर लो थोड़ी सी, उसके लिए बता रही हूँ। फिर बॉर्डर्स हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से मैं ये सारे बॉर्डर्स को और मतलब कैसे डेकोरेट करना है, कैसे कलर करना है, वो सब बताऊंगी। सो दिस इज जस्ट वन वे। बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसमें, आप मतलब बोर नहीं होगे कि कभी आपको लगेगा इसी में आपने तिरछा भर दिया, कभी रेड से भर दिया, कभी अंदर येलो, मतलब कलर कॉम्बिनेशंस एंड इसके लाइन पैटर्न्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगल्स। और ये नॉर्मल ट्रायंगल्स हैं। अगर आप ऐसे बनाते हो, नैरो बनाते हो, दिस इज झटकी। तो जैसे अभी मैंने वो पेंटिंग दिखाई, उसमें मैंने सन बनाया है ना, तो उसका जो रेज है वो ऐसे काफी नैरो है, थिन ट्रायंगल्स है, मतलब ऐसे ब्रॉड नहीं है, तो वो झटकी है। फिर इसमें आप सपोज जैसे तिरछा तिरछा फाइन लाइंस कर सकते हो। जैसे इसके लिए पेन चेंज कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा थिक है। नहीं, यही थे ना, मेरे को निब्स की आदत होगी तो मुझे ना पेन कम ही जमता है। सो ये हो गया झटकी। फिर कुटनी, जैसे कुटनी इज डैश, तो ये अपने एक बॉक्स बनाया, तो ये हो गया ऐसे बारीक बारीक, जितना पास 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 आपको डैश बना सकते हो उतना पास। तो इसको वैसे नॉर्मली भी बैकग्राउंड या कोई भी फिगर फिल करने में यूज होता है, पर मोस्टली वाटर बॉडीज को दिखाना है या कहीं से पानी फ्लो होते हुए दिखाना है, तो वहां पे ज्यादा यूज होता है इसका। अब इस पेंटिंग में मैं दिखाती हूँ एक बार आपको। ये जो है ये फुटनी है, ये झटकी है, नैरो ट्रायंगल्स। फिर ये जब सब फाइन लाइंस है, ये कचनी है। फिर ये कहना चाहिए स्केल्स जो है ना, ये फिशेज या जो बर्ड्स बनते हैं उनमें यूज होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे इसका स्केल्स थोड़ा सा राउंडेड रहेगा, बर्ड्स का थोड़ा सा लंबा लंबा सा ऐसा रहेगा, जैसे इसका दिखाई दे रहा हो तो।
Is it visible or shining? थोड़ा लंबा लंबा है. You Okay. have to zoom in a bit क्योंकि दिख नहीं रहा है like yeah, अभी it's a bit better. Yeah. हाँ. Yes. It's good. Okay. So this is fine कचनी. ये पूरा fine कचनी है. ये कलर फिल नहीं किया हुआ है कचनी. मैं इसका ना फोटो भी भेज दूंगी so that और भी क्लियर रहेगा वो. ये पूरा कचनी ही है. This all nib work. And then हाँ डॉट्स भी होंगी. डॉट्स की भी प्रैक्टिस कर लेना और देन एक लहरिया पैटर्न की प्रैक्टिस कर लेना. मैंने बहुत छोटे से बॉक्स में बताया आपको. थोड़े से बड़े एरिया में या आप ज्यादा बॉक्सेस में. इसका सैंपल भेजेंगी? हाँ मैं सैंपल भेज दूंगी. हाँ, so that it हाँ. is useful to practice. यस 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 मैम. Yeah, इसका yeah, सैंपल भेज दूंगी. इस पेज का भी फोटो भेज दूंगी और वो जो पीपीटी है उसमें भी मैं yeah. और इमेजेस अटैच कर दूंगी जिससे कि आपको वो क्लियर रहे, डिफरेंशिएट कर पाओ आप. ठीक है. तो ये ऐसे लहरिया ये हो गया. और ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं तो ये वीडियो की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको. तो इसमें भी आप वापस देख सकते हो. ओके. फिर मोस्टली हो गया है बट हाँ सर्कल्स भी कर सकते हो. तो ये ऐसे सर्कल्स हो गए. क्लोज सर्कल्स ये भी बॉर्डर के अंदर ही बनेंगे. मैं अभी लाइंस नहीं खींच रही हूँ. आपको लाइंस के अंदर ही बनाने हैं. फिर ये एक तरह से वैसे बॉर्डर डिजाइन ही हो जाती है. इसके अंदर भी आप कचनी कर सकते हो. चाहे तो तिरछी कचनी, चाहो तो हार कचनी, चाहे तो क्रिस क्रॉस. फिर कलर्स. तो इस तरह से ये सर्कल्स ये बॉर्डर में आ जाएंगे. फिर ऐसे बहुत जब छोटा स्पेस है तो आप इसको बहुत बारीक काम भी कर सकते हो. जैसे ये इतना सा स्पेस है. ये विजिबल है अभी. Yeah. छोटे छोटे सर्कल्स. ये बॉर्डर्स जैसे ड्रेसेस के बॉर्डर्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है. छोटे छोटे सर्कल्स. तो ये आपको कम से कम ये एक एक लाइन आप कर लेना तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है. वैसे हम जब अपनी पेंटिंग शुरू करेंगे ना तो ये फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगी और बॉर्डर्स भी अच्छे से और सारे बॉर्डर्स हम डिटेल में पढ़ लेंगे. प्रैक्टिस भी कर लेंगे. मतलब ड्यूरिंग द क्लास आपके साथ में प्रैक्टिस कर लूंगी. Yeah, I think that's it for today. Thank हो you. गया ये सारा. Thank you so much. Now Thank you. I'll take your questions if you have any doubts. बाकी ये तो मैं शेयर हम कर ही लोगों दूंगी. ने लिंक्स भी शेयर. फैब्रिक के बारे में बात नहीं की, but that is at a much later stage, right? हाँ यस मैम. तो फैब्रिक ये Yeah. नहीं कि आपको अगर साड़ी पे, हैंडबैग्स पे, इन सब पे बनाना होगा. बट पहले आपको ये अभी जैसे बिगनर्स है ना, पहले आप मोटिव्स और पैटर्न्स और बॉर्डर्स बनाना आपको सीखना पड़ेगा. Practice. हाँ, नहीं हाँ ठीक है. उसकी प्रैक्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी. Yeah, तो बट yeah. फैब्रिक में यूजुअली कॉटन, अच्छी क्वालिटी का कॉटन या सिल्क आप यूज कर सकते हो अगर साड़ी है तो. बैग्स जैसे जूट बैग्स के ऊपर, इवन क्लचेस के ऊपर लोग करते हैं मधुबनी पेंटिंग. तो वो जो सब ब्लैंक वो मिलता है. मतलब बहुत सारे बैग्स, मतलब इसको ना एक्चुअली आजकल लोग कमर्शियली काफी यूज करते हैं. तो इट्स यू कैन जनरेट इनकम ऑल्सो. तो बैग्स पे, साड़ीज, बेडशीट्स, कुर्ता एंड देन But I पेंटिंग्स. think, तो इट्स मुझे तो ये बेस्ट इसलिए लगती है. इट्स गुड गिफ्टिंग ऑप्शन ऑल्सो. अगर आपके पास पेंटिंग बनी रहती है तो आप जस्ट अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो, रिलेटिव्स को दे सकते हो, सेल भी कर सकते हो या अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हो. right. Yeah. So I'm Thank stopping you. the recording Yeah, now thank you. and you can ask your questions.